एम्प्लॉयज़ आर अ कंपनीज ग्रेटेस्ट एसेट। ये बात काफ़ी कॉमन नॉलेज है कि किसी भी कंपनी को बड़ा बनने के लिए उसको अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। द क्वालिटी ऑफ योर टीम determines how large and successful your business can be. But in spite of that, most business owners don't focus on employees. वो ये सोचते हैं कि कस्टमर्स को कैसे खुश रखें, forgetting the fact कि they can only be happy when your employees are happy. There was a study that was done recently which found out that if your employees are actually happy, the productivity in the workplace can increase by 8%. Also at the same time, another study in India found out that only 24% of the employees actually have well-being at work, which means that there's a lot of scope that we are leaving on the table when it comes to employee productivity. Whether you are just beginning your business or in the growth stage, building a team is essential. अगर आप एक retail store चलाते हैं, then you need to work upon your team to expand operations. अगर आपकी agency है, then you need the team to diversify your skill sets beyond what you can offer on your own. और अगर आप hospitality sector में हैं, यानी कि होटल्स या रेस्टोरेंट्स, देन योर टीम विल हेल्प यू डिफरेंशिएट vis-a-vis योर अदर कंपेटिटर्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस दैट यू आर एबल टू ऑफर। दोस्तों, मैं हूँ सर्वेश कनोडिया एंड ग्लैड टू हैव यू बैक ऑन माय चैनल। तो आज टीम बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिल्ड ग्रेट टीम्स, शैल वी? सो करीबन 12 साल पहले मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी थी इन अ कंपनी नेम JP Morgan। JP Morgan आज दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। इस बैंक का एनुअल रेवेन्यूज है $145 बिलियन, यानी कि 12 लाख करोड़। ये कई कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, ओमान, क्रोएशिया और लगभग 130 और कंट्रीज के GDP से भी बड़ा है। इफ देयर इज वन थिंग दैट स्टैंड आउट फॉर JP Morgan vis-a-vis the other banks, it is their focus on employees. Every year, the company spends $300 million on training alone, यानी कि 2400 करोड़ रुपए। There are 3 things that evidently stand out in terms of what they do on team building. Number 1, hiring good quality talent. The people who get work done. Number 2, retaining that good talent. They would do everything they can to retain you. They would create opportunities for you within the organization so that you are growing and as well as the organization is growing. And number 3, they use this very effective tool called as 360-degree feedback to drive performance and accountability. In a lot of systems, जो feedback है वो senior से junior को जाता है, but junior का क्या feedback है senior पे, वो हर जगह collect नहीं होता है, वो करते हैं। तो आप कोई भी level पे हो, आप पे feedback आपके seniors भी देते हैं और आपके juniors भी देते हैं। इससे 2 चीज़ें होती है। First of all, your behavior has to be good, and secondly, your performance has to be good. So a combination of the 3 things that JP Morgan is doing, which is one is hiring good talent, secondly is retaining good talent, and thirdly managing them through a very effective tool called 360-degree feedback. Friends, ये example एक बड़े global bank का है, but the learnings are applicable to everyone. चाहे आप कोई भी sector में हो और कोई भी stage में हो। आप ये सोच रहे होगे कि शायद business early है और या I'm a one-person army. But it is not enough that you're smart. What is important is that you're able to delegate the work and get things done. Friends, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा मान्यवर। उसके जो ओनर है रवि मोदी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी एक रिसेंट इंटरव्यू में। वो एक मेट्रिक ट्रैक करते हैं रोटी। रोटी क्या है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। वो जो अपना टाइम दे रहे हैं उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है। अब वो 1 या 2 दिन ऑफिस जाते हैं वीक में, और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी टीम है जो चाहे वो ऑफिस में हो और चाहे वो नहीं हो, वो उनके लिए डिलीवर कर पाती है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू बिल्डिंग अ टीम, बट लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट वेदर यू हैव द राइट पीपल आर नॉट। सो लेट्स गेट इनटू इट। मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी टीम की क्वालिटी कैसी है। अगर आप ये चार्ट देखें, उसमें 4 स्टेप्स हैं विच विल लीड यू टू द गोल ऑफ अ ग्रोइंग एंड सक्सेसफुल बिजनेस। ये जो 4 स्टेप्स हैं, जो लैडर या सीढ़ी भी हम उसको बोल सकते हैं, हम उस हर एक सीढ़ी लैडर के बारे में बात करेंगे। सो लेवल 1, एबिलिटी टू एक्ट विदाउट डेली इंस्ट्रक्शंस। क्या आपके बिना बोले एटलीस्ट जो डे टू डे काम है वो आपके एम्प्लॉयज़ कर पा रहे हैं? लेवल 2, कैन मैनेज सेल्स ऑपरेशंस फॉर अ फ्यू आवर्स विथ यू नॉट बीइंग देयर। अगर आप कोई भी कारण ऑफिस नहीं जा रहे हैं या लेट जा रहे हैं, तो आपके बिना वो कस्टमर से इंटरेक्ट करके बिजनेस क्लोज कर पा रहे हैं, अच्छे से ऑपरेशंस चला पा रहे हैं। लेवल 3,
आर दे एम्पावर्ड टू मेक डिसीजंस? आप छुट्टी में हैं या तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या वो आपके बिना डिसीजंस ले सकते हैं? क्या उतनी उनमें एम्पावरमेंट है कि वो आप उनको अलाउ किए हो डिसीजंस लेना आपके बिना? लेवल 4, a subset of the team, it could be senior team members who are not just running day-to-day operations, but they're also thinking about the future of the company. कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कंपनी को to grow in that direction. And they're actively thinking and working on that. If you have to achieve your goal for growing and successful business, then you need to be at the top of this framework. However, हर बिजनेस टाइप और स्टेज में रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. अगर आप एक शॉप ओनर हो तब शायद सबसे टॉप वाला जो पार्ट है फ्रेमवर्क का माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू यू राइट नाउ अनलेस यू वांट टू एक्सपैंड इनटू मेनी मोर शॉप्स. However, 1 and 2 part of the framework is very critical. Otherwise, how will you expand operations? अगर आप एक नई कंपनी हो तब शायद उतने पैसे भी नहीं हैं कि लोग हायर कर सकें. बट लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तब शायद आप 3rd लेवल पे ऑलरेडी हो उस फ्रेमवर्क में. और अगर आप नहीं हो देन यू नीड टू फिल दैट रोल अर्जेंटली एंड गैंग थिंक अबाउट हाउ डू यू गेट टू लेवल 4 इन दैट फ्रेमवर्क. लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में काफ़ी टाइम से हो और इस फ्रेमवर्क में लेवल 1 या लेवल 2 पे हो, यानी कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, आपके एब्सेंस में डे टू डे ऑपरेशंस और सेल्स ड्राइव करना भी मुश्किल होता है, then you need to act quickly. Friends, if you're not at the top of this framework, then let's discuss how you can get there. There are essentially 2 key elements in having a workforce. 1, hiring, and secondly, managing. So let's talk about 1, which is hiring. उसमें शायद आपको यही नहीं पता है कि हायर करना किसको है, और या शायद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है जिसके कारण आप हायर नहीं कर पा रहे, और या यू आर अनेबल टू फाइंड गुड टैलेंट, आपको लोग नहीं मिल रहे. Second, managing. It might be that you are unable to groom your employees so that they can function well. शायद कल्चर अच्छा नहीं है जिसके कारण वो मोटिवेटेड कम है. There is a lack of discipline or lack of performance because of inadequate controls that you set up. Friends, we can go into solutions in each of these topics and subtopics that we spoke about. However, before we go there, it is important for us to understand what the problem is. इट्स लाइक जब आप एक डॉक्टर के पास में जाते हो फीवर के साथ में, वो फीवर से ज़्यादा उसको ये इंटरेस्ट रहता है कि वो फीवर क्यों है. हम वो तभी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है जब वो ये जान सकता है कि फीवर आया क्यों है. सिमिलरली आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, सोल्यूशन तो निकल जाएगा. फ्रेंड्स, अलॉन्ग विथ मी बीइंग एन इन्वेस्टर, आई एम ऑल्सो अ लाइफ कोच. And one of the things I've observed is that the most amazing transformations happen when people find the solutions themselves. Let's figure out the problem first. We'll find out the solutions. Friends, in our subsequent videos, we'll address solutions to all of these problems that we've discussed. However, before we get there, my request is कि आप एक 3 questions के बारे में सोचें जो मैं अभी आपको बताऊंगा. पहला, जो मैंने 4 लैडर वाला फ्रेमवर्क दिया था, उसमें आप कहाँ पे हैं? Number 2, what do you think the gaps are in your team today? And number 3, given the stage of your business, what are the things that you should be doing to address some of the issues that we spoke about? From my experience of having evaluated hundreds of companies over the last 10 plus years, there are some common mistakes that many business owners do when it comes to hiring. So apart from the questions that we spoke about today, I'll give you a super useful list to avoid the mistakes that other business owners have made while hiring, ताकि वो मिस्टेक्स आप नहीं करें. नंबर 1, कॉस्ट ओवर क्वालिटी. हम 2 कैंडिडेट्स को इवेलुएट कर रहे हैं, एक जो लोअर सैलरी में आ जाएगा और स्किल वाइज कम है, एंड दूसरा जो हायर सैलरी में आएगा लेकिन स्किल वाइज बेटर है. अ लॉट ऑफ टाइम्स बिजनेस ओनर्स प्रेफर हायरिंग समवन हु इज कमिंग एट अ लोअर कॉस्ट. क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमने कंपनी की प्रॉफिट्स इंक्रीज कर दी बाय लोअरिंग आवर कॉस्ट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. एक फॉल्स पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है इन दिस केस. द कॉस्ट टू द कंपनी इज एक्चुअली हायर इन द लॉन्ग रन, बिकॉज जो हायर स्किल्ड एम्प्लॉय है फिर इनवेरिएबली एंड अप डिलीवरिंग मोर देन द लोअर स्किल्ड एम्प्लॉय. एंड एज अ रिजल्ट, इवन दो यू आर पेइंग देम अ हायर सैलरी, योर एवरेज प्रोडक्टिविटी इज हायर एंड योर बिजनेस इज डूइंग बेटर with the higher skilled employee. But 2, under hiring. Another element of cost saving is when we under hire. हमको चाहिए शायद 5-6 लोग और हम हायर करते हैं 1 से 2,
इससे क्या होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन सेट होती है और अंडर डिलीवरी होती है। नंबर 3, inadequate assessment, not assessing the candidate skill set and whether it matches with the job at hand or not। ये 2 कारण से हो सकता है, या तो आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है कि क्या स्किल सेट्स की ज़रूरत है, और ये आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है कि क्या स्किल सेट्स चाहिए, बट आप उतने एफर्ट नहीं डाल रहे हो टू इवेल्युएट कि वेदर वो एम्प्लॉय के पास में वो स्किल सेट्स है कि नहीं है। फ्रेंड्स, जब आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हो तब बहुत ज़रूरी है कि आप उसके स्किल सेट्स को खुद भी इवेल्युएट करो और साथ साथ में इंडिपेंडेंट रेफ चेक्स भी करो, बोथ की उसकी स्किल सेट्स कैसी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे विल ब्रिंग टू द टेबल एंड एज वेल एज सम ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स विच इज़ कि वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। वो 4 इज दी एक्सपेक्टेशन मिसमैच इन टर्म्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है, वर्क कल्चर कैसा होने वाला है, वर्क क्या होने वाला है। एंड जब ये क्लियर नहीं होता है तब चाहे एम्प्लॉय बाद में ज्वाइन भी कर ले, इट रिजल्ट्स इन लो मोटिवेशन एंड एज अ रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, आज हमने टीम बिल्डिंग के एस्पेक्ट पे काफ़ी कुछ कवर किया। जो फ्रेमवर्क हमने बात की, जो टिप्स के बारे में हमने बात की, इफ़ दिस रेजोनेटेड विथ यू देन कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और थॉट शेयर करिए। लेट्स कंटिन्यू दिस लर्निंग। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। In our previous video, we talked about the theme of how do you handle money. In this video, we spoke about how do you handle people around you. In our next video, we'll talk about the theme of how do you handle yourself and your personal life. There's one theme that's very common in my life coaching sessions. It's about the fear of failure. It's actually more common than what we think. There are a lot of people dealing with the fear of failure. As an entrepreneur, you need to be excited about the future potential opportunities rather than worrying about the failures. We'll talk about it in a lot more detail in our next video, friends. Till then, stay healthy, stay happy, and see you soon.